ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ, ਬੱਸ ਰੁਕ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਭਜਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੱਸ ਉੱਤੋਂ ਜਦ ਦੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ नहीं, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿन ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬੱਸ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, क्योंकि मैं ये गल बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता कि पंजाब दे विच जे नशे की तस्करी किसी राही हो रही है तो वह बादल परिवार दियां जिहड़ियां बसां उन्हां दे राही पंजाब दे विच नशा बिक रहा है। और सारी तस्करी क्योंकि इन्हां नूं फुल पुलिस प्रोटैक्शन है, बिल्कुल सेफ बसां है, इन्हां नूं कोई चैक नहीं करता तो ये विच नशा पूरा इधर उधर जा रहा है। इसे करके ही बस ड्राइवर क्योंकि उहदे च हो सकता कि नशा होना है ਉਹ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਚੰਨੋ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੰਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਤੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਕੋਦਰ ਬੱਸ ਆਈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। फिर दोबारा उसने भजाउण की कोशिश की तो कुड़ी टायर थले आ गई है, फिर पटाखा पिया है। फिर उस तो बाद तकरीब 12:15 बजे की गल है, 12:15 तो लैके फिर 4 बजे तक उन्होंने पुलिस वाले ने साढ़े ते बहुत बड़ा दबाव पाया है मखू की पुलिस ने। तो की नाल हड़ तो लाश धक्के ना खोंदे सैन करते, कहते दूजा अकाली दल दियां बसां तुहाडा कख नहीं बनना, बदो बदी सानूं धक्के ना। एक बन्ने मैं लड़की चुके ही तो बदो बदी खोंदे ही, कहते भी की नाल दे सैन कर। एक बन्ने मैं रोन डिया, एक बन्ने मेरे तो लड़की खोंदे सी भी की नाल दे तू इधर आ सैन करो। मोटर ते जाके पासे दूर खड़ के पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ सैन करवाते। उस तो बाद फिर की ना अंकल जी आए जीरा साहब, उन्होंने मुड़ के आके सड़क बंद की, फिर उन्हें आके सारा कुछ किया, मुड़ के परचा दर्ज फिर उन्हें करवाया, फिर पोस्टमार्टम वास्ते सानू जीरे खड़िया। कौन दबाव पा रहा है हुण सानू MLA साहब गांव सरपंचां नूं फोन करवा रहा विरसा सिंह वलटोआ भी नहीं तो की नाल दे धड़ ते उल्टा कार्रवाई हो जूगी ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਘਰੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਚੰਨੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ FIR ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 304 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਥਾਣੇ ਉਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਬੱਸ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਘੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਤਲ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਖੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾਓ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੇਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ तुरंत कार्रवाई है जी वो को सिटिंग जड़ा जज उतों ला के इनकी सारी कर। महाराष्ट्र से पुणे के नज़दीक वाई गांव में रहता हूँ। मैं अभी टूर द ग्लोब कर रहा हूँ जिसमें मैं 25 देशों में जाऊँगा साइकिल से। मेरा बेसिक मोटिव ये है कि मैं सारे जगह पे जाके वहाँ के लोकल लोगों को साइकिलिंग सिखा दूँ। मैंने पिछली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है जिसमें मैंने पूरे इंडिया में 14,576 किलोमीटर साइकिलिंग की हुई है। तो मेरे पास कुछ आसान ट्रिक्स है कि जैसे कि हम रोड पे सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, क्या खा के हम ज़्यादा देर तक साइकिलिंग कर सकते हैं, बिना पेडल लगाए भी कैसे साइकिल कर सकते हैं, कम से कम कैलोरीज खर्च करके कैसे साइकिलिंग करेंगे। तो मैं ये सारे लोगों के लिए एक शो बनाना चाहता हूँ जिससे कि लोग साइकिलिंग की तरफ और आ जाए और मोटिवेट होकर साइकिलिंग का एक नए चैनल से और बढ़ जाए। मेरे हिसाब से अभी मैंने 9 महीने का पैकेज बनाया है, लेकिन कुछ शूट की वजह से या फिर बाकी कारणों की वजह से इसको एक पूरा साल लग जाएगा, ऐसे मेरा अंदाज़ा है। हाँ, साइकिलिंग तो इसके लिए भी ज़रूरी है और साइकिलिंग अपनी खुशी के लिए भी ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खाली हेल्थ का इशू है या एनवायरमेंटल है, लेकिन खुद की खुशी के लिए कोई नहीं सोचता है। मैं अपनी खुद की खुशी के लिए साइकिलिंग कर रहा हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है और बाकी लोगों को भी मज़ा आता है, लेकिन उनकी सेहत उनको साथ नहीं देती है। तो जैसे ही वो साइकिलिंग थोड़ा भी शुरू करेंगे तो सेहत उनको साथ देना शुरू करेंगे और जो इसमें मज़ा है वो भी उनको आसानी से मिल जाएगा। अभी मैं अमृतसर से शुरू कर रहा हूँ और ये पूरे धरती को चक्कर लगा के ख़त्म भी अमृतसर में ही करूँगा। तो इसमें मैं अमृतसर से आज शुरू करके चंडीगढ़ तक जाऊँगा, चंडीगढ़ से फिर बॉम्बे तक जाऊँगा, बॉम्बे से फिर कन्याकुमारी तक जाऊँगा, कन्याकुमारी से कलकत्ता जाऊँगा और बीच में जहाँ पर समंदर है वहाँ से मैं फ्लाई करके ट्रैवल करूँगा। उसमें मैं थाईलैंड जाऊँगा, थाईलैंड से मलेशिया, सिंगापुर और वहाँ से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से मैं सिडनी तक या ब्रिस्बेन तक राइड करूँगा, वहाँ से फ्लाई करके यूएस में जाऊँगा जहाँ मैं सैन फ्रांसिस्को उतर के सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक साइकिलिंग करूँगा और वहाँ से फिर फ्लाई करके यूरोप में जाऊँगा। यूरोप में 10-12 कंट्रीज़ है जो पास पास में है, वहाँ पे जहाँ पे जो भी टेरेन साइकिलिंग के लिए फेमस है और जो भी लोकल सिटी में वहाँ पे जाके मैं साइकिलिंग करूँगा और उसके वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल के सारे लोगों को मोटिवेट करूँगा और फिर वहाँ से फ्लाई लेके फिर अमृतसर आ जाऊँगा। तो ये मेरा पूरा जर्नी राउंड अराउंड द वर्ल्ड टूर हो जाएगा। नशा करते किस कारण करते इसका तो रीज़न किसी के पास भी नहीं है, लेकिन साइकिलिंग से मज़ा तो उनको आने लगेगा और एक बार इसमें आ गए तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और उनको अगर इसमें मज़ा आना शुरू होगा तो अपने आप नशा पीछे छूट जाए। पिछली बार जब मैं आया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के उसी टाइम से मुझे बहुत दिल को सुकून लगा था और इस बार भी मैं इसी कारण से यही से शुरू कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र में के मातंग समाज के पूरे अस्तित्व का प्रश्न है। पूरा मातंग समाज ये स्वतंत्र रिजर्वेशन के वास्ते ये आज विधान भवन नागपुर पे पूरे महाराष्ट्र में के सब जिले में से यहाँ ये रोड पे आया है। सर किस मांग को लेकर? स्वतंत्र आरक्षण, मातंग समाज का स्वतंत्र आरक्षण, मातंग समाज की अस्मिता और मातंग समाज का जो दैवत है, गुरु है, जो लहुजी वस्ताद साल्वे, उनका पूर्ण आकृति जो पुतला है वो संसद भवन दिल्ली में और विधान भवन मुंबई में बिठाने के लिए ये आंदोलन किया गया है। कितने साल से मांग कर रहे हैं? करीब 10 या 15 साल से हम ये मांग कर रहे हैं। किसी ने आश्वासन दिया था आपको? ये अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये आश्वासन दिया था करीब 2014 में। 26 नवंबर 2014 में लाठीचार्ज हुआ था मुंबई में ये सब मातंग समाज कास्ट के लोगों पर और उसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया था, जब वो विरोधी पक्ष नेता थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम अगर सत्य पे आएंगे तो मातंग समाज को आरक्षण दिलाएंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो इससे भी तीव्र और इससे भी भयानक आंदोलन ये संगठन के तरफ से हम ये पूरे महाराष्ट्र में छेड़ेंगे।
आज का आंदोलन हमने पुलिस डिपार्टमेंट के कार्यकर्ताओं के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के परिवार के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए हमने ये आज का आंदोलन रखा हुआ है। ये मांगे हम पूरी करके रहेंगे। हम हाईकोर्ट तक अपील डालेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम पूरा पुलिस वर्ग एक जगह पे खड़ा करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगे पूरी करके रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। साल से हम इस आंदोलन का फॉलोअप कर रहे हैं। हमने पिछले 5 साल से पुलिस लोगों की जो तकलीफ हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को जो तकलीफ हो रही है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या परेशानियां है, इसके लिए हम लोगों ने उनको पूरा स्टडी किया। 5 साल से पिछले गृह मंत्रालय से हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं। नागपुर के विधिमंडल के हर अधिकारी को, हर मंत्री को हमने इसका निवेदन दिया है कि पुलिस वालों को जो तकलीफ है उस तकलीफ के बारे में समझो, उनके परेशानियों को समझो और उनके लिए सोल्यूशन दो। इसके अंदर हमारी खास डिमांड है कि पुलिस वाले की ड्यूटी 8 घंटा होनी चाहिए, उनको साप्ताहिक छुट्टी बराबर होनी चाहिए, उनका बैकलॉग जो उनको भर के आना चाहिए और उनके जो रहने की पूरा परेशानी है, 350 स्क्वायर फीट उनको रहना पड़ रहा है, उनके घर बहुत खराब हो चुके हैं, उनको घर के लिए अच्छे से अच्छा उनको घर मिलना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। इस महाराष्ट्र के जो शेतकरी है, फार्मर है, ये आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षण का भगवीकरण हो रहा है। इन लोगों को दिया हुआ कर्जा सरकार माफ नहीं कर रही है। सरकार के पास किसी तरह के पैसे नहीं है। यहाँ सरकार जो है, ये सरकार कुंभ मेला के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, पानी के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, गोदावरी को शुद्ध करने के लिए तैयार है, मगर यहाँ जो आदमी मर रहा है उसको अनुदान देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार से आपने क्या मांग की? हमने ये मांग की है कि यहाँ का जो फार्मर है उनका जितना भी कर्जा है वो पूरी तरह से माफ होना चाहिए। उन लोगों के ज़रूरत के हिसाब के मुताबिक उनको दोबारा कर्जा मिलना चाहिए ताकि वो खेती कर सके। खेती अगर वो कर सकते हैं तो इस भारत को समझ सकते हैं। तो हमारा ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी फोरम हम लोगों ने शुरुआत की है, जैसे उपेंद्र जी सेंडे है, इनके नेतृत्व में हमारे पार्टी के लोग हैं और सारे हमारे रिपब्लिकन जो जितने भी ग्रुप है सब एक साथ होकर इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ेंगे। जहां तक सरकार हमारे सामने झुकती नहीं है, हम इस हिस्से को नहीं छोड़ने वाले। रिपब्लिकन पक्ष से खुली तरह से किया गया है, इसलिए किया गया है कि सरकार जो जनता को, पब्लिक को आश्वासन देती है वो पूरा नहीं करती, इसलिए आंदोलन करना जरूरी हो जाता है। और एक सादा उदाहरण आपको बताता हूँ, नागपुर शहर का यशवंत स्टेडियम के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक का निर्णय कई सालों से हुआ है। सत्ता नहीं थी इनकी, तब भी इन्होंने आश्वासन दिए, आज भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन केंद्र में सरकार इनकी है, राज्य में सरकार इनकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ये सवाल छुड़ाया नहीं। और काय के लिए एक लीज का काम रुका हुआ है, लीज देना तो गवर्नमेंट के हाथ में है, सरकार इनकी है। तो सादा यशवंत स्टेडियम के सामने जो जगह का जन्म शताब्दी स्मारक का सवाल नहीं छोड़ सकती, तो ये राज्य का सवाल क्या छोड़ाएंगे। आज जनता भूख से मर रही है, खाने को मिल नहीं रहा, कई लोग झोपड़ी पर रहते हैं, उनको बाल के हक देना चाहिए, डिमांड कई सालों से है, उनको बाल के हक अभी तक नहीं दिया। सर्वे किया जा रहा है, लेकिन सर्वे करके वो रिपोर्ट सरकार के खाते में जमा होता है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और जो आंदोलन है, भूमि आएगा उनका सवाल है, भूमि का। और अब आत्महत्या के बारे में ये देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री नहीं था, विरोधी पार्टी में था, उन्होंने बोला था आत्महत्या सरकार रोक नहीं सकती, ऐसा उनका कहना था विरोध में रहने के बाद। तब उन्होंने क्या कहा था कि शेतकरी लोगों की आत्महत्या, किसान लोगों की आत्महत्या जो होती है उसके लिए जवाबदार लोग ये सत्ताधारी लोग हैं, उनको उनके ऊपर एट्रॉसिटी एक्ट लगाना चाहिए, खून का ये लगाना चाहिए, उनको अटक करना चाहिए। आज इनकी सत्ता है, आज ये क्या कर रहे हैं, एक साल में अनेक शेतकरी लोगों को आत्महत्या करे, कल तक आत्महत्या अभी जारी है। कोई एक कर्ज माफी का एक सवाल उठाया है कि शेतकरी लोगों, किसान लोगों का जो कर्जा है वो माफ़ करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ने उसे कोई निर्णय लिया है। पैकेज तो हर साल देते हैं, हर साल पैकेज देते हैं, पैकेज देने के बाद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसानों को। इसलिए हम चाहते हैं कि सही वाले में जनता के सवाल जो है, जो भी प्रॉब्लम है, पदोन्नति का सवाल है, सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, और ऐसे कई सवाल पड़े हैं, झोपड़ी पट्टी का सवाल है, और किसानों का सवाल तो है सबसे बड़ा। ये सवाल गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकती, इसलिए
ये सारे सवालों को ले और विदर्भ का राज्य होना चाहिए, ये हमारी मांग है। महाराष्ट्र में पिछले 14 साल से 22,500 टीचर्स लोग बिना वेतन काम कर रहे हैं। वो ये शासन से ओर से एक ही रुपया नहीं लेते। इसलिए हमारे टोटल राज्य के शिक्षक 125 आंदोलन करने के बाद पिछले सरकार ने उसका कायम शब्द हटाकर 2015 से अनुदान देने का निर्णय लिया। आज निर्णय लेकर 9-10 महीने हुए, या नया सरकार आई है। नई सरकार आने के बाद उच्च माध्यमिक का किस किस कॉलेज को अनुदान देना है उसकी यादी, पात्रशालाओं की यादी डिक्लेयर करनी पड़ती है। इसकी यादी गवर्नमेंट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं की, उसका काम चल रहा है। हमें लगता है महाराष्ट्र में उच्च माध्यमिक के 500 कॉलेज पात्र होंगे, इसलिए सिर्फ 20 कोटी रुपए का तरतूद लगते हैं। इस तरतूद करने के लिए गवर्नमेंट हमें बोल रहे हैं हम तरतूद नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने तरतूद करनी चाहिए, इसलिए हम राज्य के सब लोग इधर आए हैं। जब तक शिक्षण मंत्री, अर्थ मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे प्रश्न के बारे में उचित सोचेंगे, उचित सोचने के बाद हमें लिखित देंगे। और लेके हमें ऐसा चाहिए, उच्च माध्यमिक का तरतूद के लिए जितना फंड है ये तरतूद हम आने वाले मार्च अधिवेशन में करेंगे, या ऐसा हमें देंगे, तभी हम या हमारा चालू रहे, हमारा जो उपोषण शुरू है, आंदोलन जो शुरू है, तभी हम हमारा आंदोलन विसर्जित करेंगे। और एक हमारी एक मांग है कि महाराष्ट्र में 500 कॉलेज पात्र हो रहे हैं, ऐसे हमें लग रहा है। बाकी 5,000 कॉलेज है, उसका ही मूल्यांकन होना चाहिए, और मूल्यांकन होने के बाद उसकी आर्थिक तरतूद होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। जब तक शासन हमको ठोस निर्णय नहीं देंगे तब तक हम रुकने वाले। और अगले हमारा प्रोग्राम जब तक वो काम नहीं करेंगे, हम ऐसा भी इशारा गवर्नमेंट की तरफ कर रहे हैं कि HSC आने वाली HSC बोर्ड परीक्षा है, उसके ऊपर भी हम बहिष्कार डालने वाले हैं। गवर्नमेंट ने हमारा अंत मत देखे, जल्द से जल्द हमें निर्णय दीजिए और हमारा मोर्चा है वो मोर्चा विसर्जित करिए। आज के आंदोलन का हमारा मुख्य मकसद यह है कि हम जो MSc इंजीनियर 2008 से जो इस प्रोजेक्ट में, इस प्रकल्प में जो काम कर रहे हैं, वो प्रकल्प 22 तारीख का हमारा यानी लास्ट वर्किंग डेज है। तो हमारी जो मेन यानी जो डिमांड है या जो हमारी मांगनी है ये है कि हमको एक जॉब सिक्योरिटी महाराष्ट्र सरकार ने हमको देने को होना। इसके लिए हमारा ये आज का आंदोलन का, हमारे मोर्चे का ये मुख्य उद्देश्य है। और आज तक जो हमारा जो हम 2008 से जो काम कर रहे हैं, तो एक बिल्कुल कम मानधन पे हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हमारे अपने जेब में से पैसे लगाकर इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, अभी चालू रखा है। तो इस प्रोजेक्ट को आगे भी ऐसे अगर चालू रखना है तो हमारे जैसे जो हम इंजीनियर्स हैं, जो हम अभी तक 2008 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस सभी इंजीनियर्स को हमको यानी इन्होंने एक जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए। इसके लिए हमारा ये जो मुख्य यानी जो आंदोलन है ये चालू है। आपकी क्या क्या मांग है? हमारी जो मांग है ये है कि एक तो सबसे जो मेन और पहली जो मांग है हमारी वो है जॉब सिक्योरिटी।
यानी रोजगार की हमी जो हम बोलेंगे तो सब हमारे जो कार्यरत एमएसवीएन इंजीनियर्स है पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में हमारे पूरे 402 एमएसवीएन इंजीनियर्स कार्यरत है मंत्रालय से लेकर तालुका लेवल तक। तो इन सभी एमएसवीएन इंजीनियर्स को एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से जो पेमेंट्स होता है, जो मानधन होता है, जो वेतन होता है, वो हमको सभी इंजीनियर्स को देना चाहिए। लगभग गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 17,200 समथिंग जो वेतन है वो हमको देना चाहिए। और क्योंकि क्या करती है गवर्नमेंट एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और वही कंपनी फिर और एक थर्ड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके जो हमारा हक का पैसा होता है वो दूसरी कंपनी शेयर हो जाती है। तो उसके वजह से हमको बहुत ही कम मानधन मिलता है। अगर आपकी मांग सरकार नहीं मानती तो आप क्या करोगे? हमारी अगर मांग सांगती नहीं है तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, हम मुंबई जाके ये जो इस तरह का मोर्चा है, इससे और भव्य मोर्चा हम मुंबई मंत्रालय पे लेके जाएंगे माननीय सीएम साहब के तरफ। यहाँ पे कई सालों से, अभी 2008 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा अभी ये प्रत्येक इंजीनियर जो काम कर रहा है उसको अभी गवर्नमेंट साइड पे कैसे काम होता है और किस तरीके से काम करना चाहिए ये सब उसको अनुभव हो चुका है। और आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि नई कंपनी आके आज हमको एक नोटिस पीरियड दे दिया और आपका एक आखिरी दिन है करके बोल दिया। हम लोग जो इतने सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और हमने जो काम किया है उसका कोई किसी ने ध्यान ही नहीं रखा और हमको एक घर पे भगा दिया जा रहा है। ये हमको अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जॉब सिक्योरिटी रहे और हमने जो पेमेंट का गवर्नमेंट के रूल अनुसार जो पेमेंट मिलता है वो मिलना चाहिए, हमारी मांगनी है। ये जो आंदोलन है ये सभी कर्मचारियों के लिए एमएसवीएन जो प्रोजेक्ट चला रही है महाराष्ट्र शासन डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2005 से शुरुआत हुई है, लेकिन प्रशासन और शासन के कुछ डिसीजनों की वजह से इसको शुरू करने में 2008 लग गया। 2005 से 2008 के बीच में कुछ पेंडेंसीज थी गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लियर नहीं थी, लेकिन इसे दिल्ली सरकार के तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से इसे आनन फानन में कंपनियों को टेंडर करके जो टेंडरिंग हुआ उसके स्पैन को कंपनी जो दी गई आईटीआई के क्या बोलते कंबाइंड में, तो वो कंपनी के साथ टाइप करके ये प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करा गया। 2008 से 5 साल के लिए बॉन्ड था, बूट लेवल का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन इसमें हुआ ये है कि जो कर्मचारी था उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया गया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और 2013 से लेके जो कंपनी थी डीआईटी के तरफ से जो फाइनेंशियल ये होना चाहिए था सपोर्ट, वो न मिलने की वजह से राज्य सेतु जो है महाराष्ट्र शासन उनके ओर से जो सैलरी या मानधन मिल रही थी, तो उसको हम ये चाहते हैं कि कंटिन्यूएशन में जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको अभी रख के आगे जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, जो रुका हुआ काम है, वो पूरे तौर से हो जाना चाहिए। आजच्या मोर्चाच्या निमित्तानं आम्ही आसिफ कुरेशीच्या नेतृत्वाखाली विदर्भाच्या इथे आज आम्ही भव्य मोर्चा आम्ही घेतलेला आहे। सरकारला आम्हाला सांगायची गरज एवढीच आहे की सरकार मुसलमानाची दिशाभूल करतोय। आम्ही आरक्षण जे मागतोय ते सरकार म्हणते मुसलमान जातीला आरक्षण देता येत नाही। त्यांना मी सांगू इच्छितोय की अज्ञानपण प्रगट करू नका। आम्ही जातीच्या नावावर कधीही आमच्या धर्माच्या नावावर आम्ही आरक्षण मागत नाहीये। आमचा धर्म जो आहे तो इस्लाम धर्म आहे। आम्ही आरक्षण जे मागतोय तो आमचे मुसलमान आमची जात आहे। मुसलमान जातीमध्ये बोडी समाज आहे, खोजा समाज आहे, मेमन समाज आहे आणि गरीब मुस्लिम समाज पण आहे।
तुम्ही जर का 16% मराठ्यांना आरक्षण देताय, ते पण हिंदू आहेत, त्यांना तुम्ही जातीवर आरक्षण देताय. आम्ही इस्लामच्या नावावर आरक्षण मागत नाही आहोत, आम्ही मुसलमानाच्या जातीच्या नावावर आरक्षण मागतोय. आम्ही आणि त्या पद्धतीने कोर्टाने जर का न्याय देतात आणि कोर्टाचा न्याय न मानणारे गद्दार म्हणले जातात, कोर्टाचा न्याय मानणारे देशद्रोही मानले जातात. मग आता कोर्टाचा न्याय न मानणारे देशाचं हे सरकार आणि राज्याचं सरकार आणि देशाचं सरकार कोण? हे आम्ही म्हणायचं का हे सरकार गद्दार आहे म्हणून, हे सरकार देशद्रोही आहे म्हणून म्हणायचं का? मग न्याय देवतांनी जर का सांगितलं की त्यांना आरक्षण देणं गरजेचं आहे आणि जिथं न्याय देवता सांगतोय देण्याची गरज नाही, जिथं नाही सांगतोय त्यांना देण्याची गरज आहे. आरक्षण संघर्ष समिति का महामोर्चा है. इसमें पूरे महाराष्ट्र और विदर्भ से मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए अपनी मांग को लेकर. इसके लिए आप भारतीय जनता को क्या बताना चाहोगे? देखिए, स्टेटमेंट जा रहा है भाई, प्रेस का स्टेटमेंट जा रहा है. पिछले साल कांग्रेस एनसीपी सरकार ने जो 5% आरक्षण दी थी, वो आरक्षण ये सरकार ने रद्द कर दी. 6 महीने का इसका ऑर्डिनेंस रहता है, वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है. लेकिन जो हाईकोर्ट ने दी थी, इनका काम था उसको अधिवेशन में असेंबली में पास करना था, जो इन्होंने की नहीं. उसकी हक की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं. कितनी सरकारें आई और गई, नई सरकार आई है, इससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमारी जो अपेक्षा है आरक्षण, हमारा जो मेन मुद्दा है शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और नौकरी में हम लोगों को आरक्षण. कितने सालों से आरक्षण का चल रहा है? अभी तो हमको सिर्फ 1 महीना हुआ, 1 महीने की ताकत है. बड़े मुश्किल से हम लोग इकट्ठा होते हैं भाई, सिर्फ 1 महीने की मेहनत इकट्ठा होते हैं अधिवेशन के लिए, मांग पूरी बड़े मुश्किल से इकट्ठा होते हैं. आगे तीव्र आंदोलन करेंगे. हमको परेशान किए बोल क्या? हमारी आज हम विधान भवन के सामने आज जो धरने आंदोलन कर रहे हैं, हमारी समस्या है पानी की. हम ये चाहते हैं कि उजनी धरण का पानी लातूर के लिए रिजर्वेशन रहे और उजनी से लातूर ये पानी हमें सरकार दे. ऐसी हम उम्मीद करके धरने पे बैठे हैं. और इससे पहले भी हम सरकार से मुख्यमंत्री साहब और हमारे जो पानी पुरवठा मंत्री हैं और हमारे पालक मंत्री, इनको हमने बार बार निवेदन दिए और उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम करेंगे. हम उम्मीद के साथ रहे उनकी बात. लेकिन आज लातूर का पानी 1 महीने ही रहा है. ये लास्ट स्टेप आने की वजह से हमें धरना आंदोलन पर बैठने की बारी आ गई. और हम सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाकी चीज़ें का वो आगे रहा, लेकिन हमें पानी तुरंत वो देकर एक. और हमारे जो पानी पुरवठा मंत्री हैं और हमारे पालक मंत्री, इनको हमने बार बार निवेदन दिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया हमें कि हम करेंगे. हम उम्मीद के साथ रहे उनकी बात. लेकिन आज लातूर का पानी 1 महीने ही रहा है. ये लास्ट स्टेप आने की वजह से हमें धरना आंदोलन पर बैठने की बारी आ गई. और हम सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाकी चीज़ें का वो आगे रहा, लेकिन हमें पानी तुरंत वो देकर. लातूर का आपने इसके पहले भी सुना है, पानी के लिए वहाँ की जनता तरसती है. आज 6 लाख वहाँ पे जनता है, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है. इसी के लिए हम इनसे बात करने जा रहे हैं. आज 4 दिनों से धरना लेकर बैठे हैं. आज हमारे नेता अमित देशमुख साहब वहाँ पर बार बार उस विषय पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ आए हुए पूरे नगर सेवक और लातूर के प्रतिष्ठित नागरिक, ये सब लोग आने के बावजूद भी हमें बुलावा आया वहाँ से. ऐसा नहीं है कि नहीं आया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री फडणवीस साहब बुलाए, बात करें. हमारी समस्या छोटी मोटी नहीं है, हमें जो है सो कायम स्वरूपी पानी चाहिए. इसके लिए हमारे धरने आंदोलन है. और हम अगर ये 5 दिन तक अगर वो नहीं आए तो हम अमरण उपोषण मुंबई में करेंगे. जैसे कि इन्होंने बताया, पानी की समस्या के लिए अब तक इनके पास सुनवाई नहीं हुई. क्या आखिर सरकार चाहती क्या है, पानी लातूर वासियों का कि नहीं मिलेगा? जैसे कि इन्होंने बताया, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती, ये क्वेश्चन पे बैठने के लिए तैयार है.